IMF سے مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ بیجنگ نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھی ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کے 75ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ہانگ کانگ اور تائیوان سمیت عالمی امور پر چین کی حمایت کا اعادہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ لاہور میں PTI کے جلسے میں 2 روز رہ گئے۔ انتظامیہ اجازت دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ جلسہ روکنے کے لیے دائر درخواست پر سماعت کل لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ شیر افضل مروت کورونا وائرس کا شکار۔ PTI رہنما نے سوشل میڈیا پر ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے CEO ابوظہبی پورٹس عامر مقامی کی ملاقات۔ پاکستان میں ہوا بازی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن میں اعزازات دینے کی تقریب۔ 35 نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو ان کی خدمات پر اعزازات سے نوازا گیا۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں پولیس ناکے سے بچ کر بھاگنے والے ڈاکو ہجرت کالونی میں عوام کی حد پہ چڑھ گئے۔ مشتعل لوگوں نے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی کے ضلع غربی میں تھانہ اقبال مارکیٹ پولیس کی بروقت کارروائی۔ 6 سالہ مغوی بچے کو ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 کروڑ 4 لاکھ ڈالر کا اضافہ۔ 13 ستمبر تک ذخائر کی مالیت 14 ارب 82 کروڑ ڈالر رہی۔ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ کے 7ویں میچ میں اسٹیلینز نے ڈولفنز کو 174 رن سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کے بابر اعظم نے شاندار سنچری سکور کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دیا۔ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا۔ سردار ایاز صادق نے ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری قرار دے دی۔ خط میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کا حوالہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مخصوص نشستوں سے متعلق تیسرا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم ہونے تک PTI کا تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں۔ انہیں مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ لیگل ٹیم کی الیکشن کمیشن حکام کو بریفنگ۔ ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹری سوورنٹی کے لیے، اپنے ممبران کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت اچھا رہا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اسپیکر کے فیصلوں کی تائید بھی کرتی رہی ہیں اور اسپیکر کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے اسپیکر کا چیف الیکشن کمشنر کو خط پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے اہم قدم قرار دے دیا۔ تمام سیاسی جماعتیں اسپیکر کے فیصلوں کی تائید کرتی ہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ کسی پارٹی میں شامل ہونے والا رکن دوبارہ کسی اور جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ عطا تارڑ کا سوال۔ بلاول بھٹو نے عدالت سے سیاست کی امید جمہوریت اور عوام کے لیے نقصان دہ قرار دے دی۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ججز کی تعیناتی کا نظام وضع کیا گیا۔ آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے ملک کو آئین دیا، ہر آمریت کے دور میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ وکلاء کی جدوجہد سے مشرف کی آمریت کو شکست دی۔ جیالے چیئرمین کا وکلاء نمائندگان سے خطاب۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج اور آئینی عدالت کی تجویز مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تعینات کرنے کا مطالبہ۔ مجوزہ آئینی پیکج آئین کے خلاف اور ملک کے لیے نقصان دہ قرار۔ سمجھوتہ کرنے والے وکلاء اور ان کی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ قومی وکلاء کنونشن کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ PTI وکلاء رہنماؤں نے آئینی پیکج کو حکومت کی بدنیتی قرار دے دیا۔ بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کا آئینی پیکج کی بھرپور مخالفت کا اعلان۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے وکلاء کو مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ دے دیا۔
वकला बरादरी का आईनी तरामीम पर कानूनदानों से मुशावरत और मुसव्वदा सामने लाने का मुतालबा। तरामीम आइन के बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। शरपसंद अनासर जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। आइनी तरामीम से मुताल्लिक तजावीज़ की तैयारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कानून और इंसाफ का मुजव्विज़ आइनी तरमीम पर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के साथ मुशावरत का दावा। तासुर ये दिया जा रहा है कि बार काउंसिल आइनी तरमीम से मुत्तफिक नहीं। वकला तंजीमों के एलामियों में कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया गया। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 साल तक आम आदमी का केस नहीं उठाया जाता, क्या उनके लिए जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? मुशीर कानून और इंसाफ का सवाल। फॉर्म 47 के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं। आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट की आईनी और कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। हाफिज नईम का भी मुजव्विज़ा आईनी तरमीम को कबूल करने से इनकार। लाहौर में साबिक सदर की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के मुतबादिल कोई अदालत कबूल नहीं, ऐसी किसी भी आईनी तरमीम का भरपूर मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। मौलाना फजल रहमान के किरदार को खैराज तहसीन। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर एतराज़ात उठा दिए। मुकन्नना का इख्तियार कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। दरखास्त मफरूजों पर मबनी सवालात पर मुश्तमिल करार। सिंध के वज़ीर इत्तलात का पीटीआई की आईनी तरमीम पर हुकूमत से डील की कोशिशों का दावा। बानी पीटीआई के लिए NRO मांगा जा रहा है। आइन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नून लीग के पास नंबर्स नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों के पास जा रही है। तहरीक इंसाफ दौर में जबरदस्ती कानून मंजूर करवाए गए। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। वोटों के डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। अफसर जानी दुश्मन हो तब भी फैसला वोट से ही होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के PB 14 पर दोबारा गिनती की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली से मुताल्लिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैज हमीद पर सियासी ईमा पर काम करने के इल्जामात। वो जिम्मेदार ओहदों पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। फौज आइन की वफादार होती है जिसकी कोई सियासी सोच नहीं होती। बरसरे इक्तदार सियासी जमात से फौज का गैर सियासी ताल्लुक होता है। सिक्योरिटी हुकाम का मौक़िफ़। मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां की। हिटलर भी जर्मनी की फौज को सियासी सोच के तहत चला रहा था। सिक्योरिटी हुकाम की वजाहत। फितना अल-ख्वारिज से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। माजी में एक जमात ने फसादियों से बात की और अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सिक्योरिटी हुकाम का 2 टोक पैगाम। लकी मरबत में क्रिमिनल गैंग्स काम कर रहे हैं। कार्रवाई पर ये मुजाहिरे करवाते हैं। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर लकी मरबत में फौज जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। जब कहा जाएगा कि फौज वापस चली जाएगी, सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजदारी निजाम ठीक और कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती, सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। अफगान कौंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर के पास वीजा और पासपोर्ट न होने की खबरें मनगढ़ंत और कयास आराइयों पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे किसी भी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत का 5 दिन में फैसले का इम्कान। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के लिए 3, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट का दिया गया वक्त लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नायब रूसी वजीर आजम की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर गौर। रूस के नायब वजीर आजम की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात।
5 साल आवाम की खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूसों के लिए नहीं। पंजाब में पिछले 5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पर हो रही है। महंगाई पहली बार नीचे आई। गंदम खरीदारी न करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटे और रोटी की कीमत कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब के वाइस चांसलर्स की तकर्रियों की समरी पर दस्तखत से मुबैना इनकार पर आजमा बुखारी बरहम। गवर्नर को मुबैना पॉइंट स्कोरिंग के बजाय आईनी जिम्मेदारियां निभाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा जलसे में 2 रोज बाकी। ज़िलाई हुकूमत इजाजत देने या ना देने से मुतालिक फैसला नहीं कर सकी। लाहौर इंतजामिया को तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की गयी। सिंध असम्बली में इंसदाद मनशियात से मुतालिक सजाएं सख्त करने का बिल पेश। करंसी नोट से मोहिंजोदड़ो की तस्वीर हटाए जाने पर एमक्यूएम के रुकन की पेश की गई करारदाद मंजूर। वजीर तालीम सिंध ने करारदाद पेश करने वाले रुकन राशिद अली को सन ऑफ सॉइल का खिताब दे दिया। पाकिस्तान पर अगले 4 वर्षों में $100 अरब की अदायगियों का बोझ। रवां साल $18 अरब का कर्जा वापस करना होगा। कर्ज उतारने के लिए कर्ज देने के सिवा कोई चारा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। ये भी बता दिया कि IMF की तमाम शराइत पूरी करने पर कर्ज मिल सकेगा। कोयटा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कादराबाद का रिहायशी 2 साला बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 13 तक पहुंच गई। कराची के इलाके रंगीटान में मुलजिम ने बहन और बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गवादर में गैर कानूनी शिकार करने वाले ट्रॉलर माफिया की महकमा फिशरीज की टीमों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान गवादर की साहिली हुदूद से फरार हो गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनान में वॉकी टॉकी धमाकों से अमवात की तादाद 37 हो गई। 3000 से जायद अफराद जख्मी। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने धमाके लेबनानी अवाम के खिलाफ जंग का ऐलान और दहशतगर्दी करार दे दिए। ताइवानी कंपनी का पेजर्स हंगरी में तैयार होने का दावा। हंगरी ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पेजर्स धमाकों के बाद इसराइल के लेबनान के 6 मकामात पर फिजाई हमले। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की असलहा फैक्ट्री उड़ाने का दावा। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस ने डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ दे दिया। बाबर आजम के शानदार 104 रन। मीर हमजा, फहीम अशरफ और सुफियान मुकीम ने एक विकेट हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। PCB और क्रिकेट स्टेडियम हुकाम ने सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिन पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट इंटरिम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सिंगापुर में ब्राजील के फाइटर को तीसरे राउंड में हरा दिया। जीत के बाद शाहजेब रिन की गाजा में जंगबंदी की अपील। मुश्किल रास्ते, खतरनाक मोड़, ड्राइवर लगाएंगे पूरा जोर। सिंध के पुरफजा मकाम पर गोरख हिल के मकाम पर पहली बार बाइक रैली की तैयारियां। मर्दों के साथ खवातीन भी एक्शन में दिखाई देंगी। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। सर पर सर्जिकल कैप पहने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।